हेलो एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू कॉस्मो टैरो। आज हमारी जो रीडिंग होने वाली है वो ये टॉपिक पर होने वाली है कि आपका मतलब कभी कभी हम सोचते हैं ना, हम क्यों पैदा हुए हैं, क्या रीज़न्स है कि हम क्या करने के लिए पैदा हुए हैं। तो आज उस पर रीडिंग करते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है, आपको लग रहा है आपकी लाइफ कहीं स्टक हो रही है, समझ नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है एक जगह पे बंद हो रहे हो या जो भी है, तो देखते हैं कि क्या रीडिंग आज की आपके लिए रह सकती है। तो लेट मी शफल द कार्ड्स फर्स्ट. So we'll start with Indian Tarot deck for your overall energies. So we have the card of Sun. Okay. Let me just put this aside and shuffle more cards from the Rider-Waite Tarot deck. 4 cards we'll take from this deck. जो भी व्यूअर्स है वो लोग क्या उनका है पर्पस इन दिस लाइफ टाइम, व्हाट आर देयर पर्पस, व्हाट आर दे गोइंग टू डू. ओके, इंटरेस्टिंग. लेट्स टेक मोर कार्ड्स फ्रॉम दिस आकाशिक रीडिंग कि व्यूअर्स के क्या पर्पस है, क्या चीज़ है जो उनको रोक रही है जाने से उनके जो भी गोल्स है वहाँ तक. So we have 3 cards. We'll take one more card. Okay. Few cards from this deck. Osho Zen. What are the purpose of the viewers और क्या रोक रही है उनको ये चीज़ें करने में. Okay. More cards from this deck. What are the purpose of the viewers? Why are they here? Give me the answers to their question. Okay, we have so many cards here. We have 1, 2, 3, 4, 5 cards from this deck and we'll be taking all 5. Let's see. What are your purpose? क्या रोक रहा है आपको, हनुमान जी क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको इन चीज़ों के लिए. ओके, इंटरेस्टिंग. गाइडेंस तो बहुत अच्छी देते हैं हनुमान जी, वैसे कहना पड़ेगा. चलिए अब एंजल गाइडेंस से 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक. योर जर्नी, योर पर्पस ऑफ योर लाइफ. कभी कभी आपको सेल्फ डाउट पे क्यों जा रहे हैं मेरे व्यूअर्स, कुछ आई होप ये वीडियो के बाद सेल्फ डाउट जो है वो कहीं ना कहीं एंड पे आएगा. फिर भी लेट्स सी आपके लव वंस, आपके चाहने वाले आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं कि आपका पर्पस क्या है, क्या प्रॉब्लम आ रही है. यहाँ से हमारे को 4 कार्ड्स मिले हैं एंड विल बी टेकिंग ऑल द 4 कार्ड्स. ओके, so let me just arrange the cards for you once and then I'll adjust the camera if I want to feel like. Let's start. This is the main energy, the Sun card. Then we have card number. This is the Sun and the card number is 19. That is 10. That's 1. These numbers maybe ये number आपके लिए important होंगे. Ace of Cups from this deck. We have Ace of Cups. We have 7 of Stars and this is also called 7 of Swords. This is Ace of Cup, also known as Ace of Moons. ठीक है. Then we have the Master of Moon. That is card number 14. That makes it 5. It is King of Moon. King of Cups. And then we have 8 of Pentacles. And then 5 of Moons also we are having here. These are the 5 cards I am having from this deck. Then let me just arrange this card of 4 of Scrolls, the Karmic Trench. It is an interesting card and I think I should put this here क्योंकि मैं रीडिंग ऐसे ही करती हूँ. So let me just put this like here. Summer and Winter, 5 of Forces, 4 of Scrolls.
Then we have the bird nest, 3 of forces, and the queen of roses. Okay. Then we have these cards from the Rider-Waite Tarot deck, from the original Rider-Waite Tarot deck. The Chariot. We are having the Chariot. Knight of Swords, Hangman, and the Moon card. And the number of these cards are like 7, 12, 18, that is 9. And from the Osho Zen we are having the card, let me put this card here, fighting. So maybe some of my viewers are fighting suppression, the outsider wali thing maybe, and the aloneness wali cheez. So okay, interesting. And these are the guidance. Let me just put it here. I have some space here. Solitude, journey, and the magical blessings. So कीप योर होप्स हाई. ठीक है, इतना मत सोचो कि बहुत नेगेटिव हो रहा है. आई थिंक आपको ये कार्ड नहीं दिख रहा है एक. सो लेट मी जस्ट पुट दिस कार्ड हेयर एंड देन वी हैव वन मोर कार्ड, लेट गो ऑफ अटैचमेंट. And now let me just arrange this for you, and so that you can see all the cards in the frame. And we have a little bit space upwards, so that I can arrange all these cards for you. So let me just shift this little bit here and there, and then we have some messages here. So this will open later. Message from your loved ones. And I think ज़्यादा ऊपर करूँगी तो आपको भी नहीं दिखेगा, तो let's put it like this only. And start with the reading and go with advice card later on. So I am putting this here, but I'll take this later. Okay, I hope you can see all the cards. I can put this card here so that you can see. I guess now you are able to see the cards. Okay, so हमारी रीडिंग स्टार्ट हो रही है द सन के कार्ड से. सो बेसिकली यहाँ पे जितने लोग प्रेजेंट है वो एक फायर साइन के हो सकते हैं. मोस्ट प्रोबेबली वो लियो हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर एरीज हो सकते हैं. कप्स की एनर्जीज काफ़ी हाई है, तो मे बी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस ये भी हो सकती है. चैरियट की एनर्जीज़ है, अगेन सैजिटेरियस की बहुत है, मून से कैंसर की एनर्जीज़ बहुत आ रही है. तो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं. और भी मतलब एनर्जीज़ हो सकती हैं. कहीं ना कहीं जो व्यूअर्स है वो ये जानना चाह रहे हैं ना कि उनका पर्पस क्या है. तो सन के लिए आपका जो पर्पस है, सन जो है सबसे चमकने वाला स्टार होता है, एक काइंड ऑफ स्टार है, सारी दुनिया उसके आसपास घूमती है. बट सन के अंदर एक इशू होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक वाली चीज़ होती है, जिसकी वजह से वो चीज़ें डिस्ट्रॉय कर देता है. बट यहाँ पे हमें जो दिख रहा है ना कि सन तो आ रहा है, और साथ में ये जो एक पर्सन है ये एक योगासन में है. तो वो एक तरह से दिखा रहा है कि जब आप अंदर की चीज़ें बैलेंस कर लोगे, तो आपके जब आप अपना शैडो वर्क कर लोगे, इन शॉर्ट, या योगा से मेडिटेट करके या कैसे भी अपने आप को रिलैक्स करोगे, तो आपको जो है अपने आप रास्ते मिलने लग जाएंगे. और आपकी जो शाइन, आप शाइन करने के लिए बने हो, बट वो शाइन जो कम हो रही है वो कम होने से बच जाएगी. अभी तक जो आपके साथ हुआ 4 ऑफ स्क्रॉल्स, वो आपका कार्मिक ट्रेंच था जिन्होंने आपके साथ किया. आप में भी आपको हिंड्रेंस इसलिए हो रही होगी, आगे बढ़ने में दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो भाई ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है. तो XYZ जो भी रीज़न है, कार्मिक ट्रेंच कहीं ना कहीं, अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आपके कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक ट्रेंच है जो आपके थोड़े ड्रॉबैक्स या चीज़ें सही नहीं रही होगी. तो ज़रूरी नहीं है हर किसी का सेम पेस पे आगे बढ़े, सबका कुछ ना कुछ कार्मिक ट्रेंच है. अब ये कार्मिक ट्रेंच एक चीज़ और भी दिखा रहा है कि कोई लोग जैसे आपकी लाइफ में हो सकते हैं जो आपको आगे बढ़ते नहीं देख सकते. तो क्योंकि वो कह रहे हैं यार ये इतनी स्मूथली कैसे चीज़ों से निकल जाता है, इतना माइंड नहीं करता, इतना रिलैक्स कैसे रह रहा है. तो इसके अंदर ये आ रहा है कार्मिक ट्रेंच की वो जो गड्ढा खोद रहे हैं ना, उसी के अंदर खुद भी गिर जाएंगे. ठीक है, और आपकी लाइफ में कुछ आपने उन पर ट्रस्ट कर लिया हो, चीज़ें कर लियो,
जो आपकी चीज़ें जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है। जो चीज़ आपने विद टाइम विद योर कारमा आपने वो चीज़ें लर्न कर ली, उनको भी समझ आ गई, बट वो स्टिल आपकी लाइफ में जैसे इंटरफेयर करना चाहते हैं या जो भी है। बट अब आपने जैसे एक सिग्नल या फिर बोर्ड लगा दिया कि नो एंट्री का, कि एंट्री नहीं करनी है। देन वी हैव 5 ऑफ फोर्सेस, दैट इज़ समर एंड विंटर। तो यहाँ समर एंड विंटर्स जो है वो यही दिखा रहा है कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बहुत सनी डे है, बहुत अच्छा दिन है, और कभी कभी आपको इतना डल सा लगता है कि आपका कुछ करने का मन नहीं करता। बट फिर भी इस सब के बावजूद भी आप लोग जो है कहीं ना कहीं द बर्ड्स नेस्ट, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 बर्ड्स हैं जो अपने बच्चों को फीड कर रही है। फिर भी आप अपने लाइफ में जो आपसे जुड़े लोग हैं कहीं ना कहीं उनको जो है एक घर बनाने की कोशिश कर रहे हो या फीड करने की कोशिश कर रहे हो, या जो भी है अपनी लाइफ में अपने जो लोग जिनको आप मानते हो उनके साथ आप एक हैप्पी बॉन्ड शेयर करते हो और एक हैप्पीनेस वाला माहौल बनाते हो, नो मैटर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। द क्वीन ऑफ रोजेज़ भी आया है यहाँ पे, द क्वीन ऑफ रोजेज़ भी है एंड किंग ऑफ रोजेज़, मतलब बेसिकली किंग और क्वीन ऑफ कप्स अलग अलग डेक से आया। तो हो सकता है वही अगेन पिछली बार की भी कुछ रीडिंग में कुछ ट्विन फ्लेम कनेक्शंस आ रहे थे, इस बारी भी आ रहे हैं, अलग अलग डेक से आया है। बट किंग एंड क्वीन एंड मून की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। तो क्वीन ऑफ रोजेस ये भी दिखा रहा है कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीख गए हो। अब क्वीन ऑफ रोजेस ये नहीं है कि काफ़ी इमोशनल हो, नहीं, बैलेंस करना सीख रहे हो। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास यहाँ पर आ रहा है एस ऑफ मून। एस ऑफ मून क्या है कि लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार है, सब कुछ है, और कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज़ समझ आ गई और आपने चीज़ें बैलेंस करनी सीख लिया। और जब वो चीज़ आपके पास इनफ है तभी आप दूसरों को दे सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है जब आप अपने इमोशंस पे वर्क कर रहे हो, चीज़ों पे वर्क कर रहे हो, तभी तो आप दूसरे इंसान को समझा पा रहे हो या कर पा रहे हो। नेक्स्ट कार्ड हम देख पा रहे हैं जो आ रहा है 7 ऑफ स्टार्स। आप ना सिचुएशन में से ऐसा भी लग रहा होगा कि कुछ लोग जैसे आप ना निकलना चाहते हो कुछ लोगों के साथ किसी चीज़ के अंदर से, और उनको ऐसे निकल रहे हो जैसे उनको पता भी ना चले, थोड़ा स्नीक आउट वाला बिहेवियर आपका रहेगा। मास्टर ऑफ मून यानी कि वही किंग ऑफ कप्स है इस कार्ड में। तो कहीं ना कहीं आपने वो चीज़ मास्टर कर लिया, अपने इमोशंस को, किसको कितने देने हैं किसको कितने नहीं देने। फिर भी जो है सोसाइटी कुछ और चाहती है आपसे, बट आप थोड़ा सोसाइटी के आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हो, अलग सोचते हो, आपका थॉट प्रोसेस अलग है आपके एक्सपीरियंस की वजह से। 8 ऑफ पेंटिकल्स मेरे को लास्ट कुछ रीडिंग्स में से आ रहा ही है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स यही दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है ये पर्सन, बट उसको फिर भी लग रहा है कि कुछ कमी है, जबकि कोई कमी नहीं है। सिचुएशन आपकी ऐसी है कि अभी आप उसमें इतना मतलब 200% भी दे रहे हो, लेकिन फिर भी चीज़ें ब्लॉक सी लग रही है कि क्यों नहीं चीज़ें हो रही है। तो उसका यही रीज़न है कि वो हो नहीं पा रही है। मे बी आपकी सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि अभी आप उस चीज़ पे इतना फुल्ली फोकस जितना भी कर सकते हो उतना कर रहे हो और नहीं कर पाओगे, बट स्टिल आपको लग रहा है यार क्यों नहीं कर रहा, लोगों का हो जाता है, मेरा वो चीज़ क्यों नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं ये एक बुक है, एक ट्री दिखा रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी ये भी हो सकता है पास्ट की चीज़ों में, या जो पास्ट के पन्ने हैं वो पलटे जा रहे हैं, जो कि आपको पलटने नहीं चाहिए। पास्ट की चीज़ें छोड़ दो, जो हो गया सो हो गया। अब आप उन चीज़ों को छोड़ो, उनको आगे एज ए एक्सपीरियंस को लेके चलो, बट उनमें अटके मत रहो। जो मुझे पता नहीं क्यों आपकी एनर्जीज आ रही है कि कहीं ना कहीं आप अटकते हो उन चीज़ों में। कौन क्या बोल रहा है इतना ज़्यादा दिल पे मत लगाओ। जब कोई मतलब हो सकता है कहीं आके आपके सामने इंसिडेंट ऐसे आते हो आपको लगता हो आपके जैसे इंसिडेंट आ रहे हैं, जो भी है। नेक्स्ट कार्ड है द चैरियट का, जिसमें यही दिखाया जा रहा है कि आपको राइट एंड रॉन्ग की जो है नॉलेज आ रही है। आप सिचुएशन ब्लैक एंड वाइट देख पा रहे हो सकता है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। ठीक है, स्टार का कार्ड है क्योंकि शोल्डर पे ये दोनों हैं। तो कहीं ना कहीं ये चैरियट फाइट के ऊपर रेडी है, अथॉरिटेटिव पर्सन कह सकते हैं कि वो है। तो हाँ, सन भी थोड़ा अथॉरिटेटिव लीडरशिप टाइप पर्सन रहता है। तो अगर चैरियट है इसमें भी वही चीज़ें डिपिक्ट हो रही है कि ये थोड़ा वैसा पर्सन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है कि आप मे भी पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले रहे हो या कुछ ना ले रहे हो, लेकिन फिर भी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो या कुछ अपने चंद लोगों के भी ले रहे होगे।
तो वो भी बहुत है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स वो आप बहुत अच्छे तरीके से ले रहे हो, बट शायद कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी या सामने से अगर आप एप्रिसिएशन की वेट कर रहे हो तो वो चीज़ नहीं आ रही होगी। हैंगमैन है, आपको लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही है, तो उसकी वजह यही है कि चीज़ें वर्कआउट जो है वो नहीं कर रही है, या आपका विज़न अलग है, तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचो, ठीक है। मे बी वो सब देख रहे हो लेकिन रिएक्ट नहीं कर रहे हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। मून का कार्ड आ रहा है, लोग क्या कहेंगे से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, आप परेशान हो जाते हो, आपकी चीज़ें स्टक हो जाती है और लोग आपकी उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, आप पे अटैक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों बात कर रहे हैं। ये थोड़ा सा चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण की इमेजरी डिपिक्ट करता है, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपके आसपास वाले लोग क्या कहेंगे। और मैं कहूँगी कि आप इस पे काम भी बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि अगर मैं कार्ड्स देखूँ तो हमारे पास आया है फाइट। आप फाइट क्या कर रहे हो कि जब आपको सप्रेस करा जा रहा होगा, जब आपको सप्रेस किया गया होगा या तो कभी ना कभी, तो आपने उस चीज़ में से फ़ाइट किया, आपको फील कराया गया होगा कि आप आउटसाइडर हो, आपने कहा ओके डन, ये लॉक है इस चाइल्ड के लिए, बट एक्चुअल में ये जो चेन्स है सब ओपन है, तो वो डोर ओपन करेगा तो वो आउटसाइडर नहीं है। बट ठीक है, उसको ऐसा कभी फील कराओ, वो अलोन फील कर रहा हो, क्योंकि देखो 2 वे प्रोसेस होता है। अगर आप कहीं जा रहे हो तो अगर सामने से वो चीज़ आएगी तभी आपकी तरफ से आएगी, अगर सामने से ही चीज़ नहीं आएगी तो आप भी अपनी साइड से जो है करनी चीज़ें वो बंद कर दोगे। जैसे सामने से अच्छा जवाब मिला, वेलकमिंग मिला तो डन, अगर अच्छा नहीं मिला, थोड़ा टेढ़े मेढ़े जवाब मिले तो आप कहते हो भाई नहीं करनी मेरे को बात उधर। और वही चीज़ है, क्योंकि शायद आपके विजन्स अलग हो तो नहीं मैच करता हो, आप फाइट कर रहे हो, जो सप्रेशन था, आपको आउटसाइडर वाली चीज़ें जो लग रही थी, और एक अलोननेस में जा रहे होगे। और अलोननेस में जा रहे हो, यू आर अ गुड फाइटर, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये 3 लोगों ने आर्मर पहने हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप रेडी नहीं हो, आप बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो, सिचुएशन समझते हो, फाइट करते हो, तो दैट्स गुड। सॉलिट्यूड का कार्ड है एडवाइस के अंदर, तो सॉलिट्यूड का कार्ड यही कह रहा है कि कुछ चीज़ें ना हमें अकेले में समझ आती हैं, तो अगर हम ग्रुप में चलते हैं तो नहीं समझ आती। द सन का जो ज़ोडिएक साइन है वो लियोस को मिला हुआ है, तो लियो जो है शेर हमेशा अकेले शिकार पे जाता है, तो हाँ अकेले जाता है, अकेले समझ आता है, वो भेड़ियों के या शीप्स की तरह एक झुंड में नहीं रहता, तो वो अकेले अपना आप को जो है डेवलप करता है, चीज़ें करता है, तो आप उसी चीज़ के लिए बने हो। अगर आपको सॉलिट्यूड वाली चीज़ फेस करवाई गई है या कराया गया तो आपको वो बुरा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है, और आप उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हो, उसी में अपना ग्रोथ देख रहे हो, उसके अंदर भी आप कहीं सप्रेस नहीं हो रहे हो, आप फाइट कर रहे हो। अलोननेस कभी कभी फील होगी, आउटसाइडर भी लग रहा होगा तभी शायद ये चीज़ हो रही है, लेकिन आप फिर भी काफ़ी चीज़ें सीख रहे हो, समझ रहे हो। नेक्स्ट एक जर्नी है, मे बी आप कहीं घूमने जा सकते हो या कहीं जा रहे होगे, कोई प्लान्स होंगे, तो ये चीज़ है कि कुछ जर्नी पे जा रहे हो सकता है आउट ऑफ कंट्री या फिर इन द कंट्री आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो। उस ट्रैवल के दौरान आपको कुछ मैजिकल ब्लेसिंग्स, अगर हम यहाँ देखें, क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी, मैंने कार्ड यहाँ रखा है, तो कुछ मैजिकल ब्लेसिंग्स मिल सकती है आपको कहीं ना कहीं, आपके स्पिरिट गाइड्स या कुछ ना कुछ, ये शायद उन्हीं का प्लान ट्रिप होगा। सो लेट्स see the advice from your loved ones which we have here, and let me just read it for you. You're about to meet your future spouse, जो अभी तक नहीं मिले तो वो अपने future spouse से मिलने वाले हैं। फर्स्ट कार्ड, you will find new job, जिनको कोई नई जॉब नहीं मिली है उनको नई जॉब मिल सकती है। नेक्स्ट है पे अटेंशन टू द साइंस सेंड बाय एंजल्स, क्योंकि अगर मैजिकल ब्लेसिंग्स ट्रैवल्स के थ्रू आ रही है तो हाँ कुछ ना कुछ तो मैजिकल ब्लेसिंग है। दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, जिस भी चीज़ में डील कर रहे हो कहीं ना कहीं वो कुछ पास्ट से रिलेट कर रहा है, पास्ट लाइफ कनेक्शन ज़रूर होंगे वहाँ पे, ठीक है। अब क्या कनेक्शन है वो हमें नहीं पता। हनुमान जी कह रहे लेट गो ऑफ अटैचमेंट, मे बी आप बहुत जल्दी अटैच होते हो लोगों से तो आगे बढ़ने में मुश्किल हो जाती है। लेट गो ऑफ अटैचमेंट दैट हिंडर्स योर ग्रोथ, एज आई रिनाउंस्ड वर्ल्डली पोजेशंस टू सर्व राम, जो संसारिक पोजेशंस थे उनको हट के उन्होंने राम को पूजा, उनसे अटैचमेंट करी
मतलब बेसिकली आप दुनिया से अटैचमेंट छोड़ के अगर गॉड से करोगे तो आपको अपने रास्ते क्लियर दिखेंगे। रिलीज़ एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम रीचिंग योर फुल पोटेंशियल। जो भी चीज़ आपको आपकी फुल पोटेंशियल पे आने नहीं दे रही है, आपको उसको छोड़ना है। और अगर नहीं छोड़ा जा रहा है तो क्या करा जाए? तो अगर नहीं छोड़ा जा रहा है तो डोनेट योर ओल्ड क्लोथ्स टू नीडी पीपल। जो आपके पुराने कपड़े हैं अगर आप उनको डोनेट करते हो उन लोगों को, तो आप अपनी जो पुरानी अटैचमेंट्स है वहाँ छोड़ना शुरू करते हो। क्योंकि सबसे ज़्यादा कई लोग अटैच होते हैं अपने कपड़ों से, अपने जूतों से, अपने परफ्यूम से, और लोग कहते हैं ये डोनेट नहीं करना चाहिए। बट कभी कभी ना जब हमारा ऑरा इतना नेगेटिव होता है, हम वही कपड़े पहनते रहते हैं, तो हमें डोनेट कर देना चाहिए। कई बार आप देखोगे आप कोई नई चीज़ लेकर आए, आपने वो पहनी, आप नोटिस करना आपके साथ उस दिन सब कुछ अच्छा हुआ या बुरा हुआ या कैसा हुआ, और उसको दोबारा नेक्स्ट टाइम जब पहनोगे सेम चीज़ नोटिस करना। कई बार आप कुछ चीज़ें लेकर आओगे जो आपके लिए लकी होगी और आपका ऑरा बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ चीज़ें लेकर आओगे आप अच्छा फील नहीं करोगे, ऑरा नेगेटिव होगा, तो वो चीज़ें आपको पहनना या रखना अवॉइड कर देना चाहिए। और इसीलिए यहाँ पे लेट गो ऑफ अटैचमेंट्स है, मे बी कपड़ों से या जिससे भी है, तो आप एक बार उसको डोनेट करो ताकि आप अपना अटैचमेंट ख़त्म कर सको। जब नए आए तो नए पहनो, इस तरीके से जो है अपनी लाइफ में करो। एंड फिर अपने फीडबैक शेयर करना कि आपको कैसा लगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। और अभी माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है तो सबसे पहले ये वाली रेमेडी करो, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड है तो आपका ग्लो बहुत ज़्यादा तेज कह लो बहुत है, लेकिन आप अटैचमेंट्स के चक्कर में फंस जाते हो, सप्रेस्ड हो जाते हो, अलोन फील करते हो, या फिर फाइट करना पड़ रहा है आपको। जो कि मैं ये नहीं कह रही बहुत बुरा कर रहे हो, बहुत अच्छा ही कर रहे हो जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हो। बट कहीं ना कहीं आज हम बॉटम डेक एनर्जीज हमने डिस्कस नहीं करी है, तो वो मैं अगर देखूँ तो एंजल्स का एक और मैसेज है, यू नीड टू गेट हेल्थ चेकअप। तो कुछ ना कुछ हेल्थ चेकअप की भी ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट बॉटम डेक है, अगेन देखा क्वीन ऑफ कप्स इतना प्रोमिनेंट है, यानी कि इमोशंस के ऊपर काबू जिस दिन कर लिया आपने या आपकी चीज़ें वो कंट्रोल में आ गई, सो आप वैसे ही दुनिया जीत चुके हो। उस दिन आपको आपका असली रास्ते मिल गए। यानी अगर गुस्सा भी आ रहा है तब भी नहीं दिखाना है। टेम्परेंस अगेन ये एक इमोशनल बैलेंस दिखाता है, कहाँ आपको इन्वेस्ट करनी है एनर्जीज़, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करनी है, ये आपको देखना है। द वर्ल्ड का कार्ड है बॉटम डेक एनर्जीज़। अगेन ये सब एक डेस्टिनी का पार्ट है, आज है कल नहीं है, तो हम चीज़ों से हमारे साथ कुछ भी परमानेंटली नहीं रहने वाला। तो अटैचमेंट्स तो हमें आज नहीं तो कल उसमें से निकालना पड़ेगा। हम रोज़ उस चीज़ को सोचे और पास्ट में जीते रहेंगे तो नहीं चलेगा। ज़्यादा फ्यूचर में जीने से भी नहीं चल पाएगा, प्रेजेंट में जियो, ठीक है। फ्यूचर का थोड़ा बहुत सब सोचते हैं, लेकिन हमें फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इतना नहीं रहना चाहिए। द वॉर ऑफ रोजेस, कहीं ना कहीं वॉर ऑफ रोजेस जो है वो यही डिपिक्ट करता है कि वाइट एंड रेड फ्लावर, वाइट इज़ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, रेड इज़ ऑफ पैशन, दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो ग्रीन फ्लैग पे वो दोनों मिक्स हो गए तो फाइट रिजॉल्व हो गई। अगर आप वो करते हो तो रिजॉल्व होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। नथिंगनेस हो सकता है आपको लग रहा हो सिचुएशन में पता नहीं क्या है क्या नहीं है, बट एक्चुअल में सिचुएशन में इतना कुछ नहीं है, सिर्फ आपके माइंड में है। फेरी स्पॉटिंग आ रहा है, ये एडवाइस कहीं ना कहीं इंटरलिंक कर रही है कि सीइंग इज़ बिलीविंग एंड बिलीविंग इज़ सीइंग, दोनों चीज़ें करेक्ट है। जैसे कि जो आप देखोगे वो बिलीव करोगे, और जो बिलीव करोगे वही चीज़ हम अक्सर देखते हैं। तो ये हमारा बिलीव सिस्टम है जो हम देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हनुमान जी का एक और गाइडेंस पढ़ देती हूँ आपके लिए। एम्ब्रेस चेंजेस, कई बार ना हम लोग चेंजेस या कपड़े चेंज हो रहे, चीज़ें चेंज हो रही है, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो जो हो रहा है उसको एम्ब्रेस करो। एम्ब्रेस चेंजेस है पार्ट टू ग्रो। एज आई अंडरवेंट मैनी ट्रांसफॉर्मेशन इन माई जर्नी, बी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंस इन पर्सनल एवोल्यूशन, डिस्पोज ओल्ड स्टफ विच इज़ नॉट यूज एनी मोर, अलाउ स्पेस फॉर न्यू बिगिनिंग। आप न्यू बिगिनिंग के लिए, नई चीज़ों के लिए जगह तो तभी बनाओगे जब पुरानी चीज़ें हटाओगे और नई चीज़ें आएगी। तो पुरानी चीज़ों का हटाना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे हनुमान जी हर तरीके से आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं। लेट गो ऑफ अटैचमेंट में भी यही है कि पुराने कपड़े हटा के नए ले आओ, शॉपिंग पे चले जाओ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता अगर आप शॉपिंग भी कर लोगे, पुरानी चीज़ें बदल के कुछ नया करोगे,
ठीक है, ज़रूरी नहीं अगर कपड़े ही ख़रीदने हैं तो आप कुछ नया बना भी सकते हो जो आपको अच्छा लगे, जो आप टिपिकली रोज़ बनाते हो उससे कुछ हट के कुछ कर लो तो यू विल फील बेटर। तो आज की रीडिंग यहीं तक रखते हैं। पसंद आई है तो अगेन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो भी फील कर रहे हो कमेंट करो, आपकी नहीं तो किसी की तो हेल्प हो जाएगी। एंड सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।